Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 10th class, today I am going to teach you a story which is from your text. The name of the story is Boli. It is written by Khwaja Ahmad Abbas, written as K. Abbas. First of all, I will give you some introduction about the story, about the writer of the story. Khwaja Ahmad Abbas, born on 1914 and died on 1987, was a popular story writer. He was known as K. Abbas. He was born in Punjab in the home of celebrated Urdu poet Khwaja Altaf Hussain Hali, a student of Mirza Ghalib. Khwaja Ahmad Abbas was a well-known film director, novelist, screenwriter and a journalist in Urdu, Hindi and English languages. He was the maker of important Hindi films like Saath Hindustani, Shahar or Sapna, and the screenwriter for the best of Raj Kapoor's films. Khwaja Ahmad Abbas is considered as one of the pioneers of Indian parallel or neorealistic cinema, having penned films like Nicha Nagar, Jagte Raho, Dharti Ke Lal, Awara, Saath Hindustani and Naya Sansar. He was a prolific writer and novelist. During his illustrious career, spanning 5 decades, Abbas wrote over 73 books in English, Hindi and Urdu. Abbas was considered as a prominent writer of Urdu short story. His best known fictional work remains Inqilab, based on communal violence, which made him a household name in Indian literature. Like Inqilab, many of his works were translated into many Indian and foreign languages like Russian, German, Italian, French and Arabic. His autobiography, I Am Not an Island, an experiment in autobiography, was published in 1977. The author writes about a child who was born in a family of Nambardar. The name of the child is Boli. She was a sensitive child. The character just not symbolizes simplicity but innocence too. In the end, she symbolizes courage. From her very childhood, Boli was neglected at home. Her parents are much worried about her marriage because she has pockmarks all over her face. Pockmarks means a pitted scar or mark on the skin left by a pustule spot. ये एक किस्म की बीमारी है जो किसी को लग जाती है और उसके जिस्म पर वो निशान छोड़कर ख़त्म होती है. तो उसके they think nobody will marry her. Her parents send her school because they feel there is little chance of her getting married. तो कौन सा रोल उसके टीचर उसकी ज़िंदगी में अदा करते हैं उसको तालीम देने के लिए, वो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे. क्या बोली
उस्तादों के जो तवक्कात होते हैं उन पर उतरती है, तो वो हम इस लेसन में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक्स एट पेज 117 and I will read the paragraph for you. Her name was Sulika, but since her childhood she had been calling, everyone had been calling her Boli, the simpleton. तो जब बोली पैदा हुई उसका नाम सुलिखा रखा गया, लेकिन हर कोई उसको बोली के नाम से पुकारता था। द सिंपलटन मीन्स ए फूलिश और गलेबल पर्सन, ब्लॉक हेड यानी बेवकूफ, कम अकल। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो रामलाल जो नंबरदार था उसकी चौथी बेटी थी। जब वो 10 महीने की हो गई, वो चारपाई से गिर पड़ी और उसका जो सर था वो डैमेज हुआ। इसी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड के तौर पर रही और उसका नाम बोली रखा गया। तो एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी, तो पैदाइश के वक़्त ये लड़की बहुत खूबसूरत अच्छी थी, लेकिन जब वो 2 साल की हो गई उसके चेहरे पर पोक मार्क्स के निशान लग गए, चीचे के निशान लग गए, सिर्फ उसकी आँखें बच गई और उसका जो सारा जिस्म था वो डिसफिगर्ड हो गया, यानी उसकी शक्ल बदल गई इस पोक मार्क से, चीचे के निशान से। तो छोटी सुलेखा बोल नहीं सकती थी। जब वो 5 साल की हो गई, एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब आखिर वो बोलने के काबिल हो गई, शी यूज टू स्टैमर। स्टैमर मीन्स टू स्पीक विद सडन इनवॉलंटरी पॉजेज, यानी रुक रुक कर बोलना, बोलने में हिचकिचाहट होना। बाकी जो बच्चे थे वो अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसका नकल उतारते थे बोलने में। तो रिजल्ट नतीजे के तौर पर वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, वो कम बोलती थी, क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। रामलाल के कुल 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं, और उनमें सबसे छोटी जो थी वो बोली थी। तो रामलाल का जो घर था वो बहुत खुशहाल घर था, हर कोई चीज़ मैसर थी उसमें। तो खाने के लिए पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी घर में। तमाम बच्चे जो थे वो बहुत हेल्दी थे, सेहतमंद थे और मजबूत थे। बोली के बगैर तमाम बच्चे जो थे वो शहर के स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजे गए, और स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद उनको कॉलेज में भेजा गया आला तालीम हासिल करने के लिए। तो जो बेटियां थी उनमें राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद जो दूसरी बेटी थी उसका नाम था मैंगला, उसकी शादी का भी इंतज़ाम हो चुका था, यानी उसकी शादी सेटल हो चुकी थी। अब रामलाल जो था तीसरी बेटी के बारे में सोच रहा था जिसका नाम चंपा था। तो ये सारी बेटियां जो थी ये बहुत खूबसूरत थी, देखने में अच्छी लगती थी, खूबसूरत थी,
सेहतमंद थी और उनके लिए दुल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन रामलाल को जो परेशानी थी वो इस छोटी बेटी की थी जिसका नाम था बोली, क्योंकि उसकी न शक्ल अच्छी थी न वो ज़हीन थी, ज़हनी तौर वो कमज़ोर थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इससे आगे इंशाल्लाह हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।